Hello dear children, good evening. Welcome to English Kingdom. Today we are going to study lesson number 6. The name of the lesson is On the Face of It. As you can see the title is talking about face, the face. So we have to understand now how much the face is important. Well, answer will come. The face is very important. How it is important? Well, it gives us the first opinion about any person. It gives us immediate impression about any person. So obviously the face is very much important. But ultimately it is not the face which is important. The important thing is inner qualities. Someone is beautiful, someone is handsome. It does not mean that he is beautiful inwardly also. It may be that the person is beautiful from outside, but he is not so much good from inside. So remember, face is important, but it is not so much important. So why this in this lesson also we shall be talking about the facial beauty only. This is the story about facial beauty only. And why this lesson has been included in your syllabus, that we have to understand, because you all whoever are the readers of this particular lesson, they are passing through one age that is called adolescence age. And in adolescent age, what happens? In adolescent age, our body passes through many kinds of changes. It has many hormonal changes. Because of that, we have acne on our face. Sometimes we develop dark circles also on face. So these kinds of things are very natural. But what happens? Some children take them very seriously and they are very much worried about their face. They are very much worried about their appearance, and ultimately it affects their performance in the examination. It affects their performance in sports also, because they develop a kind of inferiority complex. Inferiority complex, what is that? अपने आप को दूसरों से हीन समझना. अगर कोई, जैसे होता है किसी के चेहरे पर कोई कुछ डार्क सर्कल्स आ गए, कहीं मुहासे आ गए, कोई ऐसी चीज आ गई जिससे उसे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि उसका फेस अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर बच्चा क्या होता है, थोड़ा सा अपने आप को नर्वस फील करता है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, और ये उसकी परफॉर्मेंस को भी प्रभावित करता है. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लेसन? द पर्पस ऑफ द लेसन इज टू मेक यू फील okay, face is important, but it is not so important that it should hamper your academics. It should hamper your performance. You should not allow for that. Okay, ultimate beauty is inward beauty, not the outward beauty. So I'm going to show you certain sayings also about that one. See, it is written here, beauty is not about having a pretty face. It is about having a pretty mind, a pretty heart, and most importantly, a beautiful soul. So it is self-explanatory, no need to explain that one. And look at this one, another one. Beauty is not about having the fairest skin. Now see, fairest skin. Children are very much concerned about fairest skin also. So you should not be worried about the color of your skin. Because had the color been important, then Obama would not have become the president. Nelson Mandela also would not have become so famous. Usain Bolt also would not have become so famous. So the color of your skin, the color of your body is not important. The important thing is your inward beauty. And how does inward beauty come from? Inward beauty come from your merits, your characteristics, your good qualities. So prettiest face, fairest skin. Okay, if the God has given you, you are lucky and you should enjoy that one. But if the God has not given that, it doesn't mean that you are lagging behind. No, it is not so important. The important thing is your work, your action. Action is more important than your appearance. It's all about having the purest heart. So I hope that you get my point. So we go back to the text. On the Face of It, this is composed by Suzanne Hill
Let's go to the introduction of the author also. You can see her picture on the screen. Dame Suzanne Hill, popularly known as DBE. She is an English author of fiction and non-fiction works. Her novels include The Woman in Black, The Mist in the Mirror, and I'm the King of the Castle, for which she received the Somerset Maugham Award in 1971. ये Somerset Maugham कौन थे? He also was a famous author और उन्हीं के नाम पर ये अवार्ड्स निकाले गए हैं जो 1971 में इनको भी मिला था, सुज़ैन हिल को. So in this lesson, she is talking about two persons, and who these two persons are. The first person is Mr. Lamb, and the another one person is Derry. Derry is a boy of 13 or 14 years. He is just like an adolescence age like you. आप ही की तरह वो एक adolescence age में है. Mr. Lamb, he is a person of an adult age. वो एक adult age का व्यक्ति है. There are some similarities between Mr. Lamb, while there are some differences in Mr. Lamb and Derry. Mr. Lamb और Derry में कुछ समानताएं भी हैं और Mr. Lamb और Derry में कुछ differences भी हैं. समानताएं क्या हैं? What are the similarities between these two? The similarities are that both these are handicapped. Both these are differently abled. दोनों ही जो हैं differently abled person हैं, यानी इनके शरीर के किसी न किसी अंग में कोई प्रॉब्लम है, डिसेबल्ड है. जैसे मिस्टर लैम है, मिस्टर लैम की जो लेग है उस लेग में प्रॉब्लम है. उनकी एक लेग जो है आर्टिफिशियल लेग है. और डेरी के साथ में क्या प्रॉब्लम है? डेरी के फेस का आधा हिस्सा इट इज बर्न्ड, वो जला हुआ है. तो दिस इज द सिमिलरिटी बिटवीन दीज टू पर्सन्स. बट व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस लाइज दैट मिस्टर लैम जो है काफी पॉजिटिव पर्सन है. ही इज नॉट वरीड अबाउट हिज लेग. He has developed a positive attitude towards life. He does not care about his tin leg. He does not care about his artificial leg. While Derry is of very negative attitude. He is always concerned about his face. He always thinks that all the people are looking at him only at his burnt face only, and they are laughing at him. That's why he has developed a kind of negative attitude that is called pessimism. और Mr. Lamb जो है वो पूरी तरह से optimism में है. He is always hopeful. He is always positive. He is with positive framework, positive frame of mind, while Derry is with negative frame of mind. So let's begin the play. This is a play actually, because this is the exchange of dialogue between two persons. One is Mr. Lamb, another one is Derry. Featuring an old man and a small boy meeting in the farmer's garden. This word farmer ये रेफर करता है इस ओल्ड मैन को. फॉर्मर मीन्स पहले वाला, और पहले वाला कौन है? पहले किसका नाम लिया गया? ओल्ड मैन का. द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप ए फ्रेंडशिप विद द बॉय हु इज वेरी विड्रॉन एंड डिफाइंड. विड्रॉन का मतलब होता है सेपरेटेड, कटा कटा, जो अपने आप को समाज से अलग रखता है. दैट इज कॉल्ड विड्रॉन. डिफाइंड मीन्स द पर्सन हु डिसोबेज एवरीथिंग. ऐसा व्यक्ति जो हर चीज को डिसोबे करता है. तो ये जो बूढ़ा आदमी है ये इस बच्चे के साथ में फ्रेंडशिप डेवलप कर लेता है. बच्चा बहुत विड्रॉन है. विड्रॉन का मतलब अपने आप को कटा कटा महसूस करता है. तो ये डेरी के कैरेक्टर स्केच, इसमें दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम्ब एंड द कैरेक्टर स्केच ऑफ डेरी. तो डेरी के बारे में हमें दो चीजें मिल गई कि डेरी जो है बहुत विड्रॉन है और बहुत डिफाइंट है. What is the bond that unites the two? लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो इन दो लोगों को यूनाइट करती है, इस ओल्ड मैन को और इस यंग लड़के को? चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी चीज है. और एट द एंड ऑफ द लेसन वी विल बी एबल टू नो द आंसर कि विच इज द थिंग विच इज कनेक्टिंग दीज टू पर्सन्स. सो सीन 1, एंड व्हाट इज देयर इन सीन 1? मिस्टर लैम्स गार्डन. सीन मिस्टर लैम के गार्डन में है. देयर इज द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग and of tree leaves rustling. पेड़ों की पत्तियों की सरसराने की आवाज, that is called rustling. और occasional sound of bird song का मतलब पक्षियों के चहचहाने की आवाज, the sound of bird chirping. Derry's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass. Derry is in the garden and he is walking slowly and tentatively. Tentatively का मतलब होता है रुक रुक के, थोड़ा रुक रुक के चल रहा है वो लंबी घास में से. He pauses
then walks on again. He comes around a screen of bushes. Screen of bushes means group of bushes. एक झाड़ी के बहुत बड़े ढेर के पास में आता है. And suddenly Mr. Lamb also comes there. Mr. Lamb भी वहां आ जाते हैं. And when Mr. Lamb comes there, he is very close at hand. At hand का मतलब very near, एक हाथ की दूरी पर. और मिस्टर लैम जैसे ही आते हैं, डैरी इज स्टार्टल्ड. स्टार्टल्ड मीन्स सरप्राइज्ड. डैरी चौंक जाता है बुरी तरीके से. मिस्टर लैम सेज माइंड द एप्पल्स. माइंड द एप्पल्स का मतलब एप्पल्स का ध्यान रखना. एप्पल्स का ध्यान क्यों रखना? कि कहीं ऐसा ना हो कि योर लेग इज ट्रिप्ड इन दैट एंड यू मे फॉल. कि कहीं तुम्हारा पैर उसमें ट्रिप हो जाए और तुम नीचे गिर जाओ. डैरी सेज व्हाट, हु इज दैट, हु इज देयर? मिस्टर लैम सेज लैम इज माय नेम, माइंड द एप्पल्स. क्रैब एप्पल्स दोज आर. क्रैब मीन्स कच्चे. दे आर रॉक एप्पल्स. अभी पूरी तरह से पके नहीं है. विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास. विंड फॉल्स मीन्स दे हैव फॉलन बिकॉज ऑफ विंड इन द लॉन्ग ग्रास. इन दिस लॉन्ग ग्रास यू कुड ट्रिप. तुम ट्रिप हो सकते हो, गिर सकते हो. I thought this was an empty place. This was an empty place. This refers to the garden. The garden was an empty place. I didn't know there was anybody here. मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पे कोई था. मिस्टर लैम को देखिए, आप शुरू से ही आपको उनके जो डायलॉग्स हैं उसमें पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म दिखाई देगा. दैट्स ऑल राइट, आई एम हियर. बिल्कुल सही है. व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है. दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट. आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस. मुझे लगा कि ये घर खाली होगा. सो इट इज. खाली तो है. सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन, बिकॉज आई एम इन द गार्डन, दैट्स व्हाई द हाउस इज एम्प्टी अंटिल आई गो बैक इनसाइड. जब तक मैं अंदर नहीं जाऊंगा तब तक घर खाली है. इन द मीन टाइम आई एम आउट हियर एंड लाइकली टू स्टॉप. और जब तक मैं यहाँ हूँ, यहाँ बाहर रहूंगा, काफी देर तक यहीं खड़ा रहूंगा. अ डे लाइक दिस, ब्यूटिफुल डे, नॉट अ डे टू बी इंडोर्स. मीन्स ही इज प्रेजिंग द डे, कि कितना अच्छा दिन है. दिस इज नॉट द डे व्हेन वी शुड गो इंडोर्स. ये ऐसा दिन नहीं है जब हमें अंदर जाना चाहिए. डैरी इज लुकिंग इन पैनिक मोड. डैरी बड़ा टेंशन में दिखाई दे रहा है. आई हैव गॉट टू गो. मुझे जाना है. मिस्टर लैम सेज नॉट ऑन माई अकाउंट. मीन्स नॉट बिकॉज ऑफ मी. मेरी वजह से नहीं. आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन. मतलब मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करता हूँ कौन गार्डन में आता है. द गेट इज ऑलवेज ओपन. ओनली यू क्लाइम द गार्डन वॉल. मीन्स द गेट इज ओपन. व्हाई डिड यू कम through the garden wall? So here we come to know that Derry has not entered into the garden through the gate, but he has climbed the wall and entered into that like a thief. Derry is angry. You are watching me. I saw you, but the gate is open. All welcome. You are welcome. I sit here. I like sitting. I had not come to steal anything. ये जो D है ये head है. I had not come to steal anything. यानी मैं कुछ चोरने नहीं आया हूं, चुराने नहीं आया हूं. मिस्टर लैम सेज नो नो नो. द यंग लेट्स स्टील, स्क्रम्प द एप्पल्स. यू आर नॉट सो यंग. जो यंग लड़के होते हैं वो चुराते हैं, वो एप्पल्स चुरा कर भाग जाते हैं. स्क्रम्प कहते हैं चुराने को. यू आर नॉट सो यंग. तुम तो अभी इतने यंग नहीं हो. आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन. मैं बस अंदर आना था, इन टू द गार्डन, गार्डन के अंदर. सो यू डिड. हियर वी आर देन. देन डैरी सेज यू डोंट नो हु आई एम. मिस्टर लैम सेज अ बॉय 13 और सो. 13 और सो मीन्स 13 साल के होंगे. डैरी सेज 14, 14 साल का. बट आई हैव गॉट टू गो नाउ. लेकिन मुझे अब जाना है. गुड बाय. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी. सो मिस्टर लैम्ब इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू मेक द बॉय कंफर्टेबल. मिस्टर लैम्ब बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को कंफर्टेबल फील कराया जाए. यानी को डरने की जरूरत नहीं है. एक गार्डन ही तो है. तुम हो, मैं ही हूं, और कोई नहीं है. बट आई एम नॉट कंफर्टेबल. आई एम नॉट अफ्रेड. मैं डरता नहीं हूं. पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी. लोग मुझसे डरते हैं. Mr. Lamb says, why should that be? ऐसा क्यों होना चाहिए? Everyone is. It doesn't matter who they are or what they say or how they look, how they pretend. I know I can see. Means Derry has a grudge towards the people. Derry के दिमाग में लोगों के प्रति एक शिकायत है. उसे लगता है कि लोग जो भी हैं वो उसके प्रति लोग उससे डरते हैं. चाहे कैसे भी लोग हों, किसी भी उम्र के लोग हों, कैसे भी वो दिखते हों, किसी भी तरह की बातें करते हैं, वो सब लोग उससे डरते हैं. Mr. Lamb says, सी वॉट, क्या देख सकते हो तुम. वॉट दे थिंक, वो क्या सोचते हैं. वट डू दे थिंक देन. यानी मिस्टर डेरी इज ट्राइंग टू से दैट आई नो ऑल द पीपल. मैं सब जानता हूँ सब लोगों के बारे में कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं. तो मिस्टर लैम्ब इज आस्किंग क्या सोचते हैं वो. डेरी कहता है यू थिंक हियर इज अ बॉय, यू लुक एट मी एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक दैट्स बैड, दैट्स अ टेरिबल थिंग, दैट इज द अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ. मुझे पता है कि तुम मेरे फेस को देख के ऐसा सोच रहे होंगे.
तुम मेरी तरफ देख रहे हो तो मेरी फेस की तरफ भी देख रहे हो? कितना बुरा है, कितनी टेरिबल चीज है, दुनिया की सबसे भद्दी चीज मैंने देखी उसका फेस। यू थिंक पुअर बॉय, तुम्हें लगता होगा मैं पुअर बॉय हूँ, बट आई एम नॉट पुअर। पुअर मीन्स बेचारा, यहाँ पुअर का मतलब गरीब से नहीं है। अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, अंदर ही अंदर आप डरे हुए हो। हु इज सेइंग दिस? डैरी इज सेइंग दिस। डैरी इज सेइंग दिस बिकॉज ही थिंक्स कि मिस्टर लैम विल बी थिंकिंग सो। उसे लगता है कि मिस्टर लैम ऐसा ही सोच रहे होंगे। एनीबडी वुड बी, कोई भी डर जाएगा मुझे देखकर। आई एम, व्हेन आई लुक इन द मिरर एंड सी इट, आई एम अफ्रेड ऑफ माई सेल्फ। जब मैं अपने फेस को खुद दर्पण में देखता हूँ, कांच में देखता हूँ, तो मैं खुद डर जाता हूँ। मिस्टर लैम सेज, नो नो नो, नॉट द हॉल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। नहीं नहीं, तुम्हारा पूरा हिस्सा शरीर का डरने वाला नहीं है। डैडी सेज, यस है। मिस्टर लैम सेज, लेटर ऑन व्हेन इट्स ए पॉज मीन्स थोड़ा दोनों की बातें रुक जाती हैं। मिस्टर लैम अब क्या कहते हैं? लेटर ऑन व्हेन इट्स ए लिटिल बिट कूलर, आई विल गेट द लैडर एंड स्टिक एंड पुल डाउन दोस क्रैब एप्पल्स। मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट इज फ्यूचर प्लानिंग, कि जब अभी थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर मैं एक लैडर लूंगा। लैडर मीन्स सीढ़ी, स्टिक, एक छड़ी लूंगा, एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स, उन क्रैब एप्पल्स को नीचे गिराऊंगा। दे आर राइप फॉर इट, वो पक चुके हैं अब। आई मेक जेली, जेली बनाने के लिए वो पक चुके हैं। इट्स अ गुड टाइम ऑफ ईयर, सितंबर, लुक एट दैम, ऑरेंज एंड गोल्डन, दैट्स मैजिक फ्रूट। कितना मैजिक फ्रूट है ये। आई ऑफन से बट इट इज बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, लेकिन इसका असली मजा जेली बनाने में आता है। यू कुड गिव मी हैंड इफ यू वांट। गिव मी अ हैंड मीन्स यू कुड हेल्प मी, if you want you could help me in making jelly. So what is basically Mr. Lamb trying to do? Mr. Lamb is trying to divert his attention. He is trying to change the subject. He wants to divert his attention from his face. वो उसके फेस से कुछ हटकर बात करना चाहते हैं, लेकिन क्या डेरी इसके लिए तैयार है? What does he say? What have you changed the subject for? तुमने सब्जेक्ट चेंज क्यों किया? People always do that. लोग ऐसा ही करते हैं। Why don't you ask me? तुम मुझसे पूछते क्यों नहीं? Why do you do what they all do and pretend it isn't true and it isn't there? तुम भी वही कर रहे हो जो दूसरे लोग करते हैं, और जैसे ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे ये सही नहीं है, ये मतलब इट इज़ नॉट ट्रू, कि मेरा जो फेस है वो ट्रू नहीं है, और मेरा फेस में जो गंदगी है वो नहीं है, मेरे फेस में जो गड़बड़ है वो नहीं है। ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं। इन केस आई सी यू लुकिंग एट माइन एंड गेट अपसेट, आई विल टेल यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ। मैं जानता हूं कि वाई आर यू नॉट आस्किंग मी अबाउट माई फेस, तुम मेरे फेस के बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते? बिकॉज यू आर अफ्रेड, क्योंकि तुम डरते हो। तुम्हें मुझसे डर लगता है, मेरे फेस से डर लगता है। मिस्टर लैम सेज, यू वांट मी टू आस्क? अच्छा, तो आप चाहते हैं मैं आपसे पूछूं आपके फेस के बारे में? से सो, ठीक है, बताओ। आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, मुझे लोगों के साथ में घुलना मिलना पसंद नहीं है। एनी पीपल। सो दिस इज अनदर कैरेक्टर स्केच ऑफ डैरी। ये डैरी का दूसरा कैरेक्टर ट्रैट निकल के आया कि ही इज नॉट सो सोशल, वो दूसरे लोगों से मिक्स होना पसंद बिल्कुल भी नहीं करता। ही वांट्स टू लिव अलोन, वो बिल्कुल अकेला रहना चाहता है। मिस्टर लैम सेज, आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न्ट इन ए फायर। मिस्टर लैम इज जस्ट गैसिंग द रीजन कि तुम्हारा जो चेहरा है हो सकता है किसी आग वगैरह में जल गया। Derry says, not in a fire. Fire में नहीं, I got acid all down that side of my face and it burnt it all away. Then Derry reveals the real cause कि उसका चेहरा जला किसके कारण? एसिड के कारण। It ate my face up, मेरा पूरा चेहरा खराब हो गया। It ate me up. It ate me up का क्या मतलब है? It has eaten all my confidence. इसने मेरा पूरा कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया है, इसने मेरा पूरा जो परफॉर्मेंस है उसको खत्म कर दिया। मिस डैरी इज एक्सेप्टिंग दैट रियलिटी दैट हिज फेस, बिकॉज ऑफ हिज फेस ही इज नॉट एबल टू डू एनी वर्क, इट हैज ईटन हिम एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट। दिस इज द एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ पेसिमिज्म कि ये पूरी जिंदगी ऐसा ही रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। मिस्टर लैम सेज, नो। डैरी सेज, आरंट यू इंटरेस्टेड? देखा, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा? क्या तुम इंटरेस्टेड नहीं हो मेरे फेस के बारे में बात करने की? मिस्टर लैम सेज, यू आर ए बॉय हु केम इनटू द गार्डन, प्लेंटी डू। तुम एक लड़के हो जो गार्डन में आए, प्लेंटी डू, बहुत इनफ है। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, एनीथिंग। देयर इज नथिंग गॉड मेड दैट डज नॉट इंटरेस्ट मी। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो भगवान ने बनाई हो और मुझे उसमें रुचि नहीं। लुक ओवर हियर, वहां देखो, ओवर बिसाइड द फार वॉल, वॉल के उस तरफ। व्हाट कैन यू सी? तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? डैरी सेज, रबिश। Rubbish means kachra. Mr. Lam says, rubbish? Look boy, look, what do you see?
Daddy says, just grass and stuff. Weeds, केवल ग्रास दिखाई दे रही है और स्टफ दिखाई दे रहा है, फालतू की चीजें, वीड्स दिखाई दे रही है. वीड्स कहते हैं अनवांटेड प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं. सम कॉल देम वीड्स, कुछ लोग उन्हें वीड्स बोलते हैं. इफ यू लाइक देम अ वीड गार्डन, लेकिन अगर आप चाहो तो उसको वीड गार्डन भी बोल सकते हो. देयर इज अ फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड हर्ब्स, ऑल सॉर्ट्स. एक फ्रूट भी है, फ्लावर्स भी हैं, ट्रीज भी हैं, हर्ब्स भी हैं, सब तरह के. बट ओवर देयर वीड्स, लेकिन वहां तुम्हें केवल वीड्स दिखाई देंगे. आई ग्रो वीड्स देयर, मैं वहां वीड्स ही उगाता हूं. वाई इज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड ए वीड एंड अनदर फ्लावर? ऐसा क्यों है कि एक हरा उगने वाला जो प्लांट है उसको तो वीड बोलते हैं और दूसरे को फ्लावर बोलते हैं. तो हियर मिस्टर लैम इज ट्राइंग टू शो द डिस्क्रिमिनेशन. ही इज एक्सप्रेसिंग हिज एंग्विश टूवर्ड्स डिस्क्रिमिनेशन. कैसा भेदभाव क्यों? दोनों ही ग्रीन हैं, तो फिर एक को वीड क्यों बोलते हैं और एक को फ्लावर क्यों बोलते हैं? वेयर इज द डिफरेंस? डिफरेंस कहाँ है? इट्स ऑल लाइफ, ग्रोइंग. लाइफ इज द नेम ऑफ ग्रोइंग, सेम एज यू एंड मी. Daddy says we are not the same. हम दोनों सेम नहीं है. Mr. Lamb says I am old, you are young. Okay, ठीक है, सेम नहीं है. मैं बूढ़ा हूं, तुम यंग हो. You have got a burnt face, I have got a thin leg. So here first time Mr. Lamb reveals that he is also a kind of differently abled person like Daddy, because he has got a thin leg. Not important. You are standing there, I am sitting there. Where is the difference? Difference कहाँ है? Why have you got a thin leg? Now Daddy is interested in his thin leg. Daddy अब उसके tin leg में इंटरेस्ट लेने लग जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि सामने वाला भी उसके जैसा ही, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, इसलिए वो उसकी तरफ खींचा चला आता है कि उसके पास भी tin leg है. तो ये जो मिस्टर लैम की जो पॉजिटिविटी है, ये डैरी की नेगेटिविटी को तोड़कर डैरी को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. Then Mr. Lamb says, real one got blown off years back. जो रियल टांग थी वो तो काफी साल पहले उग गई. लैमे लैम, some kids say. यानी मिस्टर लैम इज सेइंग कि उसे कुछ बच्चे लैमे लैम के नाम से पुकारते हैं. Haven't you heard them? You will. Lame Lamb, it fits, doesn't trouble me. Means Mr. Lamb does not have any problem with his nickname. जो उसको बच्चे जिस नाम से बुलाते हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. He says that's okay. I am the person like that. I should be spoken. I should be called like Lame Lamb. What is trouble in that? What's wrong in that? Daddy says, but you can put on trousers and cover it up and no one sees. They don't have to notice and stare. Daddy gives him an advice. Why don't you put on trousers and cover it up? No one will be able to see your distant leg. Mr. Lamb says, some do, some don't. कुछ लोग मेरी तरफ देखते हैं, कुछ नहीं देखते. They get tired of it. वो टायर्ड हो जाते हैं. In the end, there is plenty of other things to stare at. दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जिनकी तरफ स्टेयर किया जा सकता है. वो मेरी टांग की तरफ क्यों देखेंगे? Daddy says, like my face. तो Mr. Lamb is trying hard कि वो डैरी का ध्यान उसके फेस से हटाएं, लेकिन डैरी इज सो पैसिमिस्टिक. डैरी इज फुल ऑफ सो मच फ्रस्ट्रेशन दैट ही इज कमिंग बैक टू हिज फेस. कि बार बार अपने फेस की तरफ उसका ध्यान चला जाता है. जब मिस्टर लैम ने कहा कि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, कोई मेरी टांग की तरफ ही क्यों देखेगा, तो डैरी ने कहा जैसे कि मेरा फेस. मिस्टर लैम सेज लाइक क्रैब एप्पल्स. नहीं, तुम्हारा फेस नहीं, जैसे कि क्रैब एप्पल्स, जैसे कि वीड्स, जैसे कि स्पाइडर क्लाइंबिंग अप ए सिल्कन लैडर और माय टॉल सनफ्लावर्स. ये सब चीजें हैं, इनकी तरफ देखने. डैरी सेज मींस डैरी सेज थिंग्स. ये सब बातें हैं. मिस्टर लैम सेज इट्स ऑल रिलेटिव. ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं. ब्यूटी एंड द बीस्ट. ब्यूटी एंड द बीस्ट, दिस इज ए फेमस रेफरेंस. ये ब्यूटी एंड द बीस्ट का एक फेमस स्टोरी है, उसी का रेफरेंस उन्होंने यहाँ दिया है, जो आगे आपको बताई जाएगी. Daddy says, what is that supposed to mean? Mr. Lamb says, you tell me. तुम बताओ, तुम्हें मालूम होगा Beauty and the Beast क्या है. You need not think. तुम ये मत सोचना they haven't all told me the fairy story before. ये जो फेरी स्टोरीज हैं मुझे नहीं बताई गई हैं. It's not what you look like, it's what you are inside. लोग कहते हैं कि ये तुम बाहर से कैसे दिखते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम अंदर से कैसे हो ये इम्पोर्टेंट है. Handsome is as handsome does. Beauty loved the monstrous beast for himself and when she kissed him he changed into a handsome prince. कि ब्यूटी ने मॉन्स्ट्रस बीस्ट से लव किया था और फिर जब उसने उसे किस किया तो वो एक हैंडसम प्रिंस में चेंज हो गया. ये सब कहानियां मैंने सुनी हुई है. Only he would not. He would have stayed a monstrous beast. I won't change. कि अगर ऐसा नहीं होता तो वो मॉन्स्ट्रस बीस्ट ही रहता. मॉन्स्ट्रस बीस्ट मीन्स, मॉन्स्ट्रस मीन्स ह्यूज, बीस्ट मीन्स जानवर. I won't change. वो तो चेंज हो गया लेकिन मैं चेंज नहीं होऊंगा. Mr. Lamb says, in that way,
नो यू वॉन्ट, नहीं नहीं तुम चेंज नहीं होगे। एंड डैरी फिर देन डैरी क्या कहता है, नो वन विल किस मी एवर, ओनली माई मदर एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, शी डज इट बिकॉज शी हैज टू, why should I like that? I don't care if nobody ever kisses me. So Derry has a complaint towards his mother here. He says that his mother is only the person who kisses him and that also at the other side of the face. तो कोई उसे प्यार नहीं करता, केवल दूसरे जो फेस का जो दूसरा हिस्सा उस तरफ प्यार करते हैं, ये डेरी का कहना है, ये उसकी कंप्लेंट। ए बट डू यू केयर इफ यू नेवर किस देम? Now Mr. Lamb is again trying hard to divert his attention towards other things. Mr. Lamb फिर से कोशिश कर रहे हैं, he is diverting his attention towards girls. ये them जो word है, ये them girls को रेफर करता है। What? Girls, pretty girls, long hair, large eyes, people you love. Who would let me? Not one. Who can tell? I won't ever look different. When I'm as old as you, I will look the same. I'm still only have half a face. डेरी की अभी तक जो नेगेटिविटी है, उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, वो अभी तक नहीं सुधरा। देयर इज नो इंडिकेशन, अभी कोई इंडिकेशन नहीं है। एंड अगेन ही रिटर्न्स बैक टू हिज फेस, वो अपने फेस की तरफ वापस लौट कर आ जाता है। मिस्टर लैम सेज, सो यू विल, तुम वैसे ही दिखोगे, बट द वर्ल्ड वॉन्ट, लेकिन वर्ल्ड वैसा नहीं दिखेगा। द वर्ल्ड हैज गॉट ए होल फेस, दुनिया का तो पूरा चेहरा, तुम्हारी तरह आधा चेहरा नहीं है। एंड द वर्ल्ड इज देयर टू बी लुक्ड एट, और दुनिया तो अच्छी है देखने के लिए, तुम दुनिया की तरफ क्यों नहीं देखते? Why do you look at your face only? Derry says, do you think this is the world? This old garden? तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारा वर्ल्ड है, ये ओल्ड गार्डन तुम्हारा वर्ल्ड है? Mr. Lamb says, when I am here, not the only one, but the world as much as anywhere. Means when I am here, Mr. Lamb says कि जब मैं यहाँ हूँ तो मेरे लिए यही वर्ल्ड है। Then Derry पहली बार उसके टांग के बारे में बात करना चाहता है, अपने उसने फेस से उसके लेग के बारे में बात करना शुरू की, लेकिन अभी भी वो नेगेटिव चीज़ों के बारे में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, दूसरी चीज़ों के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है। डज योर लेग हर्ट यू? क्या तुम्हारी टांग तुम्हें परेशान करती है? टिन डज नॉट हर्ट बॉय। टिन ये मेटल का नाम है, आप जानते हैं, आर्टिफिशियल लेग में यूज़ किया जाता है और वो हर्ट नहीं करता है। व्हेन इट केम ऑफ, यानी ये कब, मतलब तुम्हारे शरीर से अलग हुई, कब ये तुम्हें इसका नुकसान हुआ? मिस्टर लैम से सर्टेनली एंड नाउ आई मीन, सॉरी, इसमें हमें ये करना पड़ेगा, द टिन डज नॉट हर्ट बॉय, टिन जो है वो हर्ट नहीं करता है। तो डेरी ने पूछा, व्हेन इट केम ऑफ, जब ये एक्सप्लोड हुई थी तब भी क्या दर्द नहीं हुआ था? मिस्टर लैम से सर्टेनली हुआ था। एंड नाउ, और अब, आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स, जहाँ तक तुम्हारा ये टिन है, यानी ये मेटल की जो रॉड लगी हुई है, ये रॉड जहाँ खत्म होती है उसके ऊपर तो दर्द होता होगा। मिस्टर लैम से नाउ एंड देन, कभी कभी होता है, इन वेट वेदर, जब मौसम क्लाउडी हो, रेन वाला हो, इट डज नॉट सिग्निफाई, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओह दैट इज समथिंग एल्स दे ऑल से। हाँ, मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि लोग ऐसे भी कहते हैं, लुक एट ऑल दोज पीपल, दूसरे लोगों की तरफ देखो, हु आर इन पेन, जो काफ़ी पेन के अंदर हैं, जिनको काफ़ी दर्द है, फिर भी वो बहादुर हैं। नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स, वो बिल्कुल भी इसकी शिकायत नहीं करते हैं, उन्हें तुमसे ज़्यादा दर्द है। मिस्टर लैम सेज, आई हैवंट सेड इट, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। Derry says, and think of all those people worse off than you, think you might have been blinded or born deaf or have to live in a wheelchair or be daft in your head and dribble. Derry कहता है कि लोग ऐसे भी कहते हैं मुझे कि तुम उन लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे भी ज़्यादा ख़राब हैं, सोचो तुम अंधे भी हो सकते थे, सोचो तुम बहरे भी हो सकते थे, तुम्हें व्हील चेयर में रहना हो सकता था, या फिर तुम पागल हो सकते थे, डाफ्ट, डाफ्ट कहते हैं मैड, पागल हो जाते, या फिर तुम्हारे ड्रिबल, ड्रिबल का मतलब मुंह से लार गिरना, तुम इस तरह से मेंटली पूरी तरह से पागल हो जाते हैं। डेरी का कहना है कि ऐसा लोग ऐसा कहते हैं। मिस्टर लैम सेज, एंड दैट्स ऑल ट्रू, ये तो बिल्कुल सही बात है, एंड यू नो इट, तुम तो जानते हो। डेरी सेज, इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, यानी डेरी को तो अपना फेस चेंज कराना है, उसे लगता है कि उसका फेस उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और वो इन बातों से फेस चेंज नहीं होने वाला है। डू यू नो, वन डे वुमन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, आई वाज एट ए बस स्टॉप एंड शी वाज विद अनदर वुमन एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड, विस्पर्ड ओनली आई हर्ड हर, शी सेड, लुक एट दैट, दैट्स अ टेरिबल थिंग, दैट्स अ फेस ओनली a mother could love. Now Derry is giving a reference, he is telling a story कि one day I was at a bus stop and one lady was passing by me, एक लेडी मेरे पास में से गुजर रही थी, दूसरी लेडी से बात कर रही थी कि look at his terrible face, कितना terrible face है, इस फेस को तो केवल एक मदर ही लव कर सकती है और कोई नहीं लव कर सकता।
Mr. Lamb says, so you believe everything you hear? Then क्या तुम हर सुनी सुनाई बात पर विश्वास करते हो? It was cruel. ये तो बहुत क्रूअल था. Maybe not meant as such. हो सकता है उसका मतलब वो रहा ही ना हो. Just something said between them. कहा कुछ गया हो और तुमने सुना कुछ हो. Terry says, only I heard it. मैंने सुना. And is that the only thing you ever heard anything say in your life? तो क्या तुम्हारे जीवन में तुमने सिर्फ यही बात सुनी है? Oh no, I have heard a lot of things. मैंने बहुत सारी बातें सुनी. Mr. Lamb says, so now you keep your ears shut. तो अब तुम तुम्हारे कानों को बंद रखो. Terry says, you are peculiar. You say peculiar things. You ask questions I don't understand. Peculiar means strange. तुम बहुत अजीब हो. अजीब तरह की बातें करते हो. क्योंकि अजीब इसलिए लग रहा है कि डेरी का जो अपना वर्ल्ड है उसने अपने चारों तरफ नेगेटिविटी डेवलप कर रखी है और मिस्टर लैम जो हैं वो पूरी तरह से पॉजिटिव माइंड फ्रेम के हैं, इसलिए उनकी बातें डेरी को समझ में नहीं आ रही हैं. मिस्टर लैम सेज, आई लाइक टू टॉक, हैव कंपनी. मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, लोगों की संगत में रहना बहुत अच्छा लगता है. यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस. तुम्हें क्वेश्चन के आंसर देने की जरूरत नहीं. यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल. तुम्हें यहाँ रुकने की भी जरूरत नहीं. द गेट इज ओपन. तुम जा सकते हो. मिस्टर लैम इज सेइंग, मैंने तुम्हें रोका नहीं, तुम जा सकते हो. यस, बट here it is the first indication that Derry is attracted towards Mr. Lamb, कि Derry Mr. Lamb की तरफ attract हो रहा है. Because the first time Mr. Lamb has said him to go from here, from there, from garden, but Derry says that he does not want to go. He is hesitating. Mr. Lamb says, I have a hive of bees behind those trees over there. मेरे पास एक मधुमक्खियों का छत्ता भी है उस पेड़ के उस तरफ. Some hear bees, they say bees buzz, but when you listen to bees for a long while, they hum and hum means sing. I hear them singing my bees. Mr. Lamb has a very different attitude towards everything. For people, bees buzz. लोगों के लिए bees जो होती हैं वो buzz करती हैं, लेकिन उनके लिए क्या है कि bees sing. bees जो होती हैं वो sing करती हैं और मुझे उनका गाना अच्छा लगता है. Terry says, but I like it here. I came in because I liked it. And when I looked over the wall, if you had seen me, you would not have come in. अगर तुमने मुझे देख लिया हो तो तुम यहाँ पर नहीं आते. No, Mr. Lamb says no. It would have been trespassing. Trespassing means किसी की एरिया में बिना परमिशन के घुस जाना, उसको कहते हैं trespassing. Hey, that's not why. I don't like being near people. मुझे लोगों के पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं. When they stare, when I see them being afraid of me, क्योंकि वो मेरी तरफ stare करके देखते हैं, वो मुझसे डरते हैं. Mr. Lamb says, you could lock yourself up in a room and never leave it. तो ठीक है, तुम एक काम करो, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो और कभी इसको मत छोड़ो. There was a man who did that. एक आदमी था ऐसा जिसने ऐसा किया. He was afraid, you see, of everything. Everything in this world. उसे हर चीज से डर लगता था. किस चीज से? A bus might run him over. कहीं एक बस उसके ऊपर से निकल गई तो, एक्सीडेंट हो गया तो. A man might breathe deadly germs onto him. किसी ने उसके ऊपर, किसी व्यक्ति ने अगर उसके ऊपर डेडली जम्स ब्रीथ कर दिए तो, जैसे कोरोना वायरस अभी चल रहा है. और ए डोंकी माइट किक हिम टू डेथ, या किसी डोंकी ने उसे लात मार दी तो. और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, कहीं बिजली चमकी और उसके ऊपर गिर गई तो. और ही माइट लव ए गर्ल, अगर उसने किसी लड़की से प्यार किया और द गर्ल वुड लीव हिम, और लड़की ने उसे छोड़ दिया तो. ही माइट स्लिप ऑन ए बनाना स्किन, कहीं वो बनाना स्किन के ऊपर फिसल गया तो, गिर गया तो, और लोग उसे देखेंगे. तो इस डर से उसने अपने आप को उस कमरे के अंदर बंद कर लिया. सो ही वेंट इनटू हिज रूम, इसलिए उसने अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लिया. एंड गॉट इनटू हिज बेड एंड स्टेड देयर. टेरी सेज, फॉरएवर, हमेशा के लिए. फॉर ए व्हाइल, कुछ समय के लिए. देन व्हाट, क्या हुआ? अ पिक्चर फेल अप द वॉल ऑनटू हिज हेड एंड किल्ड हिम. एक दिन उसके जो सिर के ऊपर जो पिक्चर दीवार के ऊपर लगी हुई थी वो उसके ऊपर गिर गई और मर गया. डेरी लाफ से, डेरी खूब हंसता. So this is the first time Derry is laughing. This is the second indication where we come to know that Derry is being attracted towards Mr. Lamb. Mr. Lamb, you see, but you still say peculiar things. लेकिन तुम अभी भी अजीब अजीब बातें करते हो. Peculiar to some, कुछ को अजीब लग सकती. What do you do all day? क्या करते हो तुम पूरे दिन भर बैठ के? Sit in the sun, read books. Hey, you thought it was an empty house, but inside it's full. Books and other things full. Derry says, but there are not any curtains at the windows. लेकिन विंडोज पे कर्टेन्स क्यों नहीं है?
आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेंस, मुझे पर्दों का शौक नहीं। शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन, मुझे चीज़ों को बाहर की तरफ रोकना, अंदर की तरफ रोकना बिल्कुल पसंद नहीं है। आई लाइक द लाइट, मुझे लाइट बहुत अच्छी लगती है। एंड द डार्कनेस, डार्कनेस भी बहुत अच्छी लगती है। एंड द विंडोज़ ओपन, और विंडोज़ मुझे ओपन चाहिए टू हियर द विंड, ताकि मैं विंड की आवाज़ सुन सकूँ। सो मिस्टर लैम के बारे में, जो कैरेक्टर स्केच के बारे में, ये और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ही इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेंस। यस, आई लाइक दैट व्हेन इट इज़ रेनिंग आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ। ये इट शब्द किसको यूज़ किया गया? ये विंड की साउंड के लिए यूज़ किया गया है। आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ। सो यू आर नॉट लॉस्ट, तुम पूरी तरह से मतलब निराश नहीं हो। आर यू नॉट ऑल टुगेदर? यू डू हियर थिंग्स, यू लिसन, तुम चीज़ों को सुनते हो, तुम चीज़ों को समझते हो। दे टॉक अबाउट मी। अब डैरी वापस से अपने फेस के बारे में बात करने लग गया कि वो मेरे बारे में बात करते हैं डाउन स्टेयर्स, नीचे की तरफ। व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं नहीं होता हूँ घर में, तब वो मेरे बारे में बात करते हैं। व्हाट विल ही एवर डू, क्या करेगा वो। व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन, जब हम दुनिया से चले जाएंगे तब उसका क्या होगा। हाउ एवर विल ही गेट ऑन दिस वर्ल्ड, दुनिया में कैसे उसका काम चलेगा। लुकिंग लाइक दैट, अगर इस तरह से वो दिखेगा। विद दैट ऑन हिज फेस, उसका चेहरा इस तरह से जला हुआ। दैट्स व्हाट दे से। सो एक्चुअली whom about whom he is talking about his parents। तो उसको अपने पेरेंट्स से बहुत सारी ग्रज हैं, जिसमें से एक ग्रज तो अपनी मदर से है। मदर से ग्रज है कि वो उसे सिर्फ फेस के दूसरी साइड में किस करती है, और जिस साइड से बर्न्ड फेस है उस तरफ से किस नहीं करती है। वो किस उसको इसलिए करती है क्योंकि उसे करना होता है। द सेकेंड ग्रज इज दैट दे टॉक अबाउट हिम, कि वो उसके बारे में इस तरह की बातें करते हैं कि उसका क्या होगा, वो जब चला जाएगा, वो जब उसके माँ बाप चले जाएंगे तब वो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, लाइक दैट। तो ये उसके बारे में बातें होती हैं। So this was the first part, and rest of the part we will be doing in second part of this lesson. Thank you very much.